يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت أنها دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الزهد فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتعلق كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمعت فوعدي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب فوزي قد زدت لك فدخل معهم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل علينا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزلني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا أوس وخليفتي وصاحب اللواء قد زدت لك فدخل عليكم تحت الكساء
ولا أمرا منيرا ولا شمسا مهدية ولا قلبا يدور ولا بحرا يهدي ولا قلبا يسري إلا بمحبوبها ولا الخمسة الذين هم تحت الكسوة. وقال نبي جبريل يا رب من تحت الكسوة فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعروها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتعزنوني أن حابد إلى الأرض ليكون معهم سعادة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأصحاب تعمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله على يخلق السلام والسكن التحية والإكرام يقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرض مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا خلق يزول ولا بار يهدي ولا خلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تنظرون يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من ولي الله إنهم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد هوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا ولي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافله أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتقربوا. فقال علي عليه السلام ملزم الله خذنا وفاء الشيطان ورب الكعبة. فقال أبي يا رسول الله فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين فيهم معمون إلا وفرج الله همه ولا معمون إلا وكشف الله همه ولا تعلم حاجتي إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وزم الله خذنا وسويدنا وقضى عليك أشياءنا فعز وصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
मजीद सूरह फातिहा मरहूम हसन जाफर मिर्जानी ने सैयद अबुल हसन मिर्जानी और मज़हर अब्बास से अपने
एक और दूर पढ़ते मोहम्मद वाले कौन कर सकता है, कौन कर सकता है इदराक अबू तालिब का, कौन कर सकता है इदराक अबू तालिब का, खानदान शहे लौलाक अबू तालिब का, खानदान शहे लौलाक अबू तालिब का। इनके पोतों को मोहम्मद कहे अपना बेटा, इनके पोतों को मोहम्मद कहे अपना बेटा, सोच कितना है लहू पाक अबू तालिब का, सोच कितना है लहू पाक अबू तालिब का। कह रहा है मेरे मौला का सलूनी कहना, कह रहा है मेरे मौला का सलूनी कहना, अर्श है शामिले अमलाक अबू तालिब का। चांद या पास है तारे अली अकबर कासे, चांद या पास है तारे अली अकबर कासे, सज गया देखिए अफलाक अबू तालिब का। पढ़िए मोहम्मद वाले बस मसाइल के दो सकीना शरावट पेश करता हूँ, दूर पढ़िए मोहम्मद वाले हुसैन जाता है मरने को है मेरी ज़ैनब, करीब आ गया अब वक़्ते आखिरी ज़ैनब, सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैनब। अरे ज़ैनब ने कहा
क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। याद आओगे भैया। अरे बाला आपके होगा गुर्बत का ये आलम। इस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा माना। अरे सादात को जब राह में देगा कोई सदका। याद आओगे भैया। अरे याद आएगा भैया मुझे। अरे मान तुम्हारा। अरे तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। अरे दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा। याद आओगे भैया। अरे जिस माह से मनसूब थी भैया मेरी खुशियां थी। सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। अरे शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना। याद आओगे भैया। अरे दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने। अरे क्या शाम के जिंदान में आओगे सुनाने। अरे सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना। याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। याद आओगे भैया। सबसे पहले आप हज़रात सूरह फातिहा मरहूम सैयद हसन जाफर बिकरामी साहब के लिए और हसन अब्बास साहब नौजवान जो हैं उनके लिए और तमाम मरहूमों के लिए दुआ करें।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشافع المحشر سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وآثر حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم. صلوات दो मोमिनीन के बुलंदी दराजात के लिए एक ऐसा नौजवान कि जिसने पूरी जिंदगी आले मोहम्मद की सीरत पर और मवद्दत के रास्ते पर बसर की, और दूसरी शख्सियत मरहूम हसन जाफर बिलग्रामी साहब कि जिनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्होंने अपने अहद के जवानों की अदाई तरबियत की है, अदाई तरबियत की है। और हमने जब से उन्हें देखा बचपन से, तो या तो मजलिसें करते हुए देखा, या महाफिल करते हुए देखा, या जश्न करते हुए देखा। मुख्तसर यूं कहूँगा कि घर से बाहर आते थे तो सिर्फ काम आले मोहम्मद के काम के लिए आते थे, और दिनों रात यही मजलिसें, महाफिल, जश्न, उसको मुरतब करना, खुतबा का इंतजाम करना, अंजुमनों सलाम पढ़ने वालों को दावतें देना, पूरी जिंदगी मरहूम की इसी में गुजर गई। और यकीनन मैं हमेशा ये जुमला कहता हूँ कि मरने के बाद हुसैन के तारुफ से बेहतर कोई तारुफ नहीं होता। इसलिए कहता हूँ निस्बतें कायम कीजिए, निस्बतें कायम कीजिए। कोई झाड़ू दे के निस्बत कायम करे, कोई चांदनी बिछा के निस्बत कायम करे, कोई अदादारों की जूतियां सीधी करके निस्बतें कायम करे, कोई प्यासों को पानी पिला के निस्बतें कायम करे, कोई मजलिसों में बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ के निस्बतें कायम करे, कोई बुलंद आवाज से नारे हैदरी लगा के निस्बतें कायम करे। हुसैन के दरबार में इज्जतें तकसीम हो रही हैं। अब ये समेटने वाले का ज़र्फ है कौन सी इज्जत हासिल कर ले। इसलिए कि अगर कोई मर जाए और कोई कहे कि मरने वाला बहुत अच्छा इंजीनियर था, कोई कहे मरने वाला अपने अहद का गवर्नर था, कोई कहे मरने वाला बहुत बड़ा दौलतमंद था, तो निस्बतें तो सबके साथ जुड़ी हुई हैं, मगर निस्बतें महदूद हैं। अगर दौलत खत्म हो गई तो फिर तारुफ नहीं है, अगर तालीमी इदारे खत्म हो गए तो उस्तादों का कोई तारुफ नहीं है, अगर अस्पतालों में मरीज खत्म हो
उनकी खबरों पे गए हैं, ना हमने उनके बारे में कोई तफसील पढ़ी है, मगर हमें इतना पता है आले मोहम्मद वाले थे तो आज मजलिसें उनके जिक्र से चमक रही है। इसलिए कि निस्बत यहाँ पर काम आई, निस्बत यहाँ पर काम आई, और निस्बत तब कायम होगी जब अकीदा अच्छा होगा। खुदा ताला फरमाए, हो सकता है उनकी शख्सियत से किसी को कोई इख्तिलाफ भी हो, उनसे भी हो सकता है, मुर्तज़ा भाई से भी हो सकता है, लेकिन जब अकीदा आ जाए तो सब एक हो जाते हैं। जब अकीदा आ जाए तो फिर किसी किस्म की बहस नहीं रहती। यही वजह है जनाजे में भी अकीदे का ऐलान होता है, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम सिवाय खैर के साहिब मैयत के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, यानी गवाही दे रहा है सिवाय विलायत के हमें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल ऐसी है जैसे मुस्तकर होता है। और अगर आप पूछे मुस्तकर क्या है, तो मुस्तकर की तारीफ जो इस आयत में बयान हुई, सूरह यासीन की आयत जो सनाब कलाम में पढ़ी है, वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम। सूरज अपने मुस्तकर के साथ सफर को जारी रखे हुए है। ज़ालिका, ये तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम, ये इसकी तकदीर है, ये इसकी तकदीर है। क्या है? मुस्तकर के साथ है, मुस्तकर के साथ है। जहां अकीदा हो वहां तकदीरें समझ जाती हैं। जहां अकीदा डगमगा जाए वहां मुकद्दर भी फूट जाता है, जहां मरकज खराब हो जाए वहां पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जहां प्रकार की नोक रखते हैं उसे मुस्तकर कहा जाता है। मुस्तकर वो नुक्ता है जहां प्रकार की नोक होती है। अगर ये मुस्तकर से हट जाए तो दायरा बर्बाद हो जाता है, दायरे से बाहर हो जाता है। इसलिए अकीदे का मुस्तकर है, सूरज का मुस्तकर है। अगर सूरज अपने मुस्तकर को छोड़ दे तो जहाने आलम तक तो ताराज हो जाए। आपने देखा बगैर मुस्तकर के सूरज का हिस्सा है, तवज्जो कीजिएगा, आता है तो मुस्तकर पर, जाता है तो मुस्तकर पर। सूरज का मशरिक से निकलना ऐने फितरत है और मगरिब में गुरूब होना ऐने फितरत है। अल्लाह का पूरा निजाम फितरत के ताबे है, फितरत से हट के कुछ भी नहीं है। अगर फितरत से हटे तो अदाब आ जाए। अगर सूरज मशरिक से निकले तब तो फितरत हो, और अगर पलट जाए किसी के इशारे पर तो फितरत से हटेगा नहीं। उसका पलटना भी फितरत पर है, उसका निकलना भी फितरत पर है। आप कहेंगे दो बातें एक साथ ठीक कैसे हो सकती हैं? या तो मगरिब में डूबना फितरत हो या मशरिक से निकलना फितरत हो। अगर पलटे तो फितरत पर कैसे हो सकता है? उसको तो फितरत से हट जाना चाहिए, नहीं होगा, फितरत से नहीं हटेगा। इसलिए कि हम और आप इशारा करें तो सूरज नहीं हटेगा। जिसकी इताअत सूरज की फितरत में है, और नहीं फरमा रहे, जिसकी इताअत सूरज की फितरत में शामिल है, उसके इशारे से अगर हट जाए तो निकलना भी फितरत पर है, पलटना भी फितरत। इसलिए कि अपने मुस्तकर पर है, तवज्जो कीजिएगा। अब क्या हुआ? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उन्होंने जो अच्छे शेर कहे हैं, अल्लामा इकबाल के अच्छे शेर, उसमें एक शेर है, जहां में अहले ईमान सूरज खुर्शीद जीते हैं, मोमिन की जिंदगी भी सूरज की तरह है। सूरज पे कोई गलबा नहीं पा सकता,
तवज्जो कीजिएगा, मासूम फरमाते हैं अगर मोमिन कामिल हो तो मुनाफिकों की बद्र में अगर तन्हा भी हो उस वक्त वो मुनाफिक कह रहे थे, आज मैं लफ्ज बदल सकता हूँ, मुकस्सिरों की बद्र में भी तन्हा हो, कोई गलबा नहीं पा सकता, इसलिए कि मोमिन सूरज की तरह है, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, सूरज डूबता भी है उभरता भी है, मोमिन डूबता भी है उभरता भी है, मोमिन की जिंदगी में नशेब भी है और फराज भी है, मगर चूंकि सूरज अपने मरकज पर कायम है, इसी तरह मोमिन भी अपने मरकज पर कायम है। सूरज मरकज से हटे तो दबाव आ जाए, मोमिन मरकज से हटे तो मोमिन पे दबाव आ जाए। सूरज अपने मरकज पर है, हम अपने मरकज विलायत अली पर है, मुनाफिकों में रहे तब भी मरकज पर है, अपनों में रहे तब भी मरकज पर है। सलावत पढ़े बना और ऐसे मौके में मुझे हदीस याद आई, इमाम है जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूँ पूछने वाले का हम पर एहसान है। ये सवाल उसने पूछा है 1400 साल पहले, कहने लगा कि फर्जंद रसूल अगर हुज्जत खुदा पर्दे में हो हम कैसे इस्तेफादा करें? सवाल तो जैन है, जो सामने ही नहीं है तो फायदा कैसे उठाएंगे? इमाम ने कहा ऐसे ही जैसे बादल में सूरज से फायदा उठाया, जैसे बादल में रहते हुए सूरज से फायदा उठाया जाता, यदि सूरज का बादल में जाना सूरज पे कोई असर नहीं डालता। इस्तेफादा करने वाले बादल में छुपे हुए सूरज से भी इस्तेफादा कर लेते हैं, और जो पहले ही अकल के अंधे हों उन्हें दिन में तारे तो नजर आ जाते हैं मगर सूरज से इस्तेफादा करने का तरीका नहीं आता। अब अगर कोई गैबत में हुज्जत खुदा हो मगर इस्तेफादा करने की सलाहियत हो तो वैसे ही काम लेगा इमाम से कि जैसे बादल में छुपे हुए सूरज से लिया जाता है। यानी इमाम ने समझाया है मिसाल देकर कि सूरज को समझ लो, इमामत समझ में आ जाएगी। साहिबान में नशीब फरमाया, सूरज समझो इमामत समझ में आ जाएगी। सूरज से वैसे इस्तेफादा करो जैसे इमामत से होता है। तवज्जो कीजिएगा, पहला इस्तेफादा तो यही है कि औकात नमाज सूरज तय करता है और नहीं फरमा रहा। फजर होगी तो सूरज पर, मगरिब होगी तो सूरज पर, दोहर असर होगी तो सूरज पर, सूरज के बगैर नमाज नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं, अकीदा विदायत के बगैर नमाज नहीं है। अच्छा भाई मैं अब ऐलान कर रहा हूँ, कोई अमल करेगा नहीं लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। कितने? 2 करोड़ रुपए। 15 मिनट तक सूरज देखते रहिए। नहीं समझ रहे आप? मुर्तजा भाई कहेंगे सूरज से आंख मिलाना किसी की हैसियत नहीं है। सूरज से आंख न सूरज को चिराग दिखाया जाता है, न सूरज से आंख मिलाई जाती है। अब अगर कोई डट जाए कि नहीं हम तो मुकाबला करेंगे और सूरज से आंखें मिलाएंगे तो फिर याद रखो, सूरज को देखो, नजर हटाओगे तो बिना ही सलामत नहीं रहेगी। यही वजह है जिन्होंने अली को छोड़ा, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया। सूरज से आंख मिलाने की जरूरत न कीजिएगा। सूरज से अच्छा मुझे कहीं दिखाइए एक वक्त में 2 सूरज हों। पहुंच गए? एक जुमला है और आगे बढ़ता जाऊंगा। एक वक्त में सूरज एक होता है
भी एक वक्त में एक होता है। सूरज का कोई साया नहीं होता, इमाम का साया नहीं होता। सूरज का साया सब पर होता है, सूरज पर किसी का साया नहीं होता, इमाम का साया सब पर होता है। इमाम पर किसी का साया नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये दुनिया और ये जो 9 सैयारे घूमे चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं। अभी तो 9 है, 9 ही है ना, पहले 8 थे। कुछ सालों पहले नवा दरियाफ्त हुआ है, उससे पहले पता नहीं था। कोर्स की पूरी किताबें बदल दी गई, एक बढ़ाओ, इसलिए कि एक पहले खैबर में था, अब मिल गया है। अंग्रेज बड़े होशियार हैं, ये नासा वाले जो तहकीक कर रहे हैं 16 सितंबर, अगर खोया हुआ मिल जाए तो मान लेते हैं एक का इजाफा कर लो, एक को बढ़ा दो। अभी तो 9 हुए हैं, 1400 बरस पहले मासूम बता चुके हैं सैयारों की तादाद 12 है। जिस दिन 12 समझ में आएंगे, 12 सैयारे भी समझ में आएंगे। चक्कर काट रहे हैं, सूरज शराफत के दरमियान, तवज्जो रहे। बादशाह साहिब जलाल, कोई करीब नहीं आ सकता, कोई हमसरी नहीं कर सकता। 9 का काम है चुपचाप चक्कर काटते रहे। तवज्जो कीजिएगा, सूरज पर किसी की इताअत वाजिब नहीं है, सैयारों पर इताअत वाजिब है। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए हम कहते हैं जो किसी एक की भी इताअत कर ले इमाम नहीं होता। इमाम या तो रसूल की इताअत करेगा या अल्लाह की करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते सूरज पर किसी की इताअत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, इमाम बड़े जामे हदीस है ये, इसको खोलते जाइए, कयामत तक फैसले करते जाइएगा। मैं तो सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं आज की मजलिस में। अब अगर दुनिया इजमा कर ले, हम तो नहीं घूमेंगे, हम तो सूरज के चक्कर नहीं लगाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। तो आप भाईजानों से पूछे क्या हशर होगा, गौर नहीं फरमाया आपने। यानी अगर कोई सैयारा हर धरती पे उतर आए, इताअत को छोड़े, बगावत पर उतर आए, या यूं समझ लीजिए कि अपनी मनमानी करने की कोशिश करे और कहे हम चक्कर नहीं लगाएंगे, हम अपनी जगह रुक जाएंगे, हम तबाह नहीं करेंगे, सैयारा वही तबाह हो जाएगा जो सूरज की मुखालफत करे। सूरज में असर नहीं पड़ता, वो खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। जाके तारीख में देखो, जो जमल और सिब्बीर में आए थे, अली का कुछ नहीं बिगाड़ सके, उनकी तबाह बर्बाद हो गए। सूरज से टक्कर लेने वाला खुद नुकसान उठाएगा, सूरज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इमाम को कोई परवाह नहीं है, इमाम को कोई परवाह नहीं है। देखिए ये बल्ब की ट्यूबलाइटें चल रही हैं, आप किसानों को बुलाएं और कहें कि हम आज से आप लोगों को खेतों के ऊपर जो है छतें बना रहे हैं और जदीद बल्ब हमने मंगवाए हैं, बिजली फ्री है, उसकी रोशनी में फसलें तैयार करो। क्या समझे आप? किसान कहेगा पागल हो गए हो। आप कहेंगे क्यों भाई, जदीद दौर है, बल्ब है, तो फिर ये सूरज की रहमत की जरूरत क्या है? तवज्जो कीजिएगा, वो कहेगा कितने बड़े बल्ब ले आओ जो असरात धूप में है, उसका मुकाबला दुनिया का कोई बल्ब नहीं कर सकता। अब जिसको जहां तक समझना है समझ जाए, अली के मुकाबले में कितने बना के ले आओ जो असर में अली में है, मुकाबला
ही तकसीम कर रहा है। जिंदा है तो सूरज से। कितने विटामिन है जो सूरज में? डॉक्टर कहते हैं जाइए धूप दीजिए, नहीं लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। भाई हम तो अब तक गदीर की धूप में, हम तो अब तक गदीर की धूप में हैं। चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए एक बात, अब बच्चे चुके हैं तो ये मेरी बात जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं आजकल, इनके जहन में ताजा है। और जो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं उन्हें तो सारे प्लेनेट के नाम भी याद हो गए, बच्चों को याद है। देखिए भाई 9 है, 9 है, और जो जितना दूर है कोने में उतना ठंडा है। क्यों है? रोशनी नहीं पहुंच रही, कम पहुंच रही। कम पहुंचने की वजह से सर्दी वहां ज्यादा है। फिर अगला सैयारा, थोड़ी ज्यादा गर्मी पहुंचेगी सूरज की, सर्दी कम होगी। फिर आगे भैया जी जितने सूरज से करीब होंगे हरारत में इजाफा होगा, हरारत में इजाफा। और जितने दूर होंगे उतनी ज्यादा हरारत कम होगी, और जब हरारत कम होगी तो सर्दी ज्यादा होगी, और जब सर्दी ज्यादा होगी तो आबादी कम होगी। इसलिए दुनिया ऐसे स्केल पर है कि जहां पर न बहुत ज्यादा गर्मी है और न बहुत कम है। इसलिए हमारे यहाँ दोनों मौसम पाए जाते हैं। हम गर्मियां भी देखते हैं और हम सर्दियां भी देखते हैं। अगर सर्दियां छिन जाएं तो बीमारियां हो जाएं, और अगर सिर्फ गर्मियां रहे सर्दी ना हो, या एक मौसम भी कम हो जाए, तो फिर वो हुस्न नहीं रहेगा जो आप देख रहे हैं। यानी हर चीज एतदाल पर है। वैसी ग़िज़ाएं हैं, वैसी खाना है, वैसी माशरत है कि जिस तरह के मौसम है वैसे ही फल हैं, वैसी सब्जियां हैं, वैसी दालें हैं। जैसा मौसम बनता है वैसे खुदा ने ग़िज़ाएं रखी हैं, और आपका जिस्म उसी के मुताबिक तरतीब पाता रहता है। मगर उसूल ये है कि जो सूरज से जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा चमकेगा, और जो सूरज से जितना दूर भागेगा रोशनी उतनी कम पहुंचेगी। यानी जितने नजदीक होंगे मारिफत में इजाफा होगा, और जितने दूर जाएंगे सूरज से इस्तेफादा कम होगा। अब समझ में आया? बैठने वाले तो बहुत थे, बैठने वाले बहुत थे, मगर कोई दूर बैठा है, कोई करीब बैठा है। करीब और दूर वाला बराबर नहीं है। इसलिए हर कोई सलमान नहीं बना, अबू दर नहीं बना, हबीब इब्न मज़ाहिर नहीं बना, अबू बकर नहीं बना। जो जितना नजदीक रहेगा उतना इस्तेफादा, और जितना दूर रहेगा उतना गुमनामी में, उतना गुमनामी में। मैंने मुर्तजा भाई को एक बर्तन दिया और मैंने कहा इसमें निजात से पाक कर दीजिए। मुर्तजा भाई ने कहा ये पानी से नहीं होगी, धूप पे रख दीजिए, धूप पे रख दीजिए। सूरज की एक सिफत है पार करना। जो निजात पानी से पाक ना हो वो धूप से पाक हो जाती है। हालांकि सूरज अपनी जगह है, फिर धूप पड़ जाए तो ताहिर हो जाता है। अल्लाह ने सूरज में पाक करने की सलाहियत रखी है। यानी जो निजातें औरों से पाक ना हो उन्हें सूरज की धूप पाक करती है। इमाम वो निजात दूर करता है जो ना पानी से होती है। मुझे नहीं पता कहां तक पहुंच रहे हैं। देखिए नुक्ते हमारे पूरे होते हैं, आधे नहीं होते, पूरे होते हैं। सूरज वो निजात पाक करेगा जो सूरज ही से होगी। तवज्जो कीजिएगा। इमाम वो निजात दूर करता है जो ना पानी से होती है, जो ना मट्टी से होती है, अगला जुमला ना धूप से होती है। नहीं, इमाम वो वाले निजात दूर करता है। अब आप पूछेंगे वो कौन सी है? वो बाहर की नहीं है, अंदर की है। और अंदर की है सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली। इमाम से पूछा गया, अब हदीस पेश कर रहा हूं, छठे इमाम से पूछा गया सबसे बड़ी निजात क्या है? इमाम फरमाते
शिर्क की तारीफ पूरी नहीं होती। पहले जुमले में कहा सबसे बड़ी निजात शिर्क है, उसके बाद कहा बुत-परस्त मुशरिक है, उसके बाद तीसरे जुमले में फरमाते जो अली को न माने वो ऐसा ही है जैसे बुत-परस्त हो। शिर्क की निजात पानी से दूर नहीं होती, शिर्क की निजात खाक से दूर नहीं होती, शिर्क की निजात सूरज से दूर नहीं होती। ये तब होगी जब विलायत अली दिल में। विलायत दूर करती है शिर्क को, इसलिए कहते हैं कि ऐलान विलायत करना आपको शिर्क की तरहदों से बाहर ले आता है। शिर्क की तरह छट जाती है, खत्म हो जाती है जब ऐलान विलायत होता है। मासूम है 14, नाम कितने? 7 नाम, 4 अली, 4 मोहम्मद, 2 हसन, 1 हुसैन। 14 में भी 1। जब 14 में दूसरा हुसैन नहीं है तो हुसैन जमाना कहां से पैदा हो? हुसैन जमाना कहां से पैदा हो गया? बहुत फरमा रहे आप, बदलते नहीं था जमाना। तकरीबन 7 हो गए। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, जाफर और मूसा, 7 हो गए। 7 में जलवा 14 का है, जलवा 7 में 14 का है। ये पहले तो 14 हो जाए, सेकंड पे 7 हो जाए, रिपीटेड नाम अगर निकल जाए तो 7 हो जाते हैं। सूरज की रोशनी को तोड़िए तो 7 रंग निकलते हैं। रंग पे तकरीर की थी, 7 रंग निकलते हैं। कितने? सूरज में 7, प्रिज्म से गुजारा, थोड़ा तो 7, दिखने में 1 धूप थी, लेकिन जब बातें में पहुंचे तो 7 रंग नजर आए, और जब रंग से रंग मिले तो फिर 14 रंग पूरे हो जाते हैं। तो ये जो दुनिया में आप रंग देख रहे हैं ये भी सूरज की वजह से है, यानी धूप के अंदर जो रंग छुपे हैं, जिसका जितना असर जहां तक पहुंचता है, जो जगह जितनी सलाहियत रखती है वही रंग अपना लेती है। यानी धूप पड़ती सब पर है, मगर जिसमें जितनी सलाहियत है वो उसी रंग में रंग